Hello friends, Kalro School Halor presenting this video for standard 9th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about a poem on killing a tree from the book Beehive. Okay, this poem was written by the Jivya Patel. Okay, Jivya Patel, if you are talk about, he is a famous Indian poet and also a playwright. Patel is also practicing a doctor. He was born in Mumbai in the year of 1914. So he completed his education from the Mumbai. His first collection of the poetry was entitled, the poem was launched by the Nizzi Musical. You listen the name of the Nizzi Musical, okay, in 1966. How do you withstand? This is her poem of collection. Another he wrote about the body and the mirror of the mirroring. This is of her another collection. Some of his famous collections are also there. So he is very famous poet, and he edited the collection of the poetry which was published in 2006. Okay, if we talk about this poem, this is the poem about a beautiful ironic statement written by the poet. Okay, killing is word is using for the tree in this poem. Actually it means its opposite. Okay, he tells how trees are to be killed, but they mustn't. Okay, the tree takes years to grow from the earth. उसको अर्थ में से ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे साल बीत जाते हैं. और वो कहते हैं कि ही सेज दैट to kill a tree, its root must be pulled out entirely from the soil. Okay, so this poem is about the convey a message that the trees are our lifeline, so they must not be killed. And he instruct us how a tree is killed, and he is give out the message that the trees are something pious like a human being, and he conveys that the tree is very deep rooted and cannot be ripped out easily. So he indicates to us that compare it with evil, which is also deep rooted and surrounding and cannot be uprooted so easily without changing the environment. So this is the central idea about the poem. So let's see what is there into the poem. Okay, here poet describe about that. First stanza we will discuss. It takes much time to kill a tree. It's take a much time to kill a tree. Not a simple job of a knife. Okay, not a simple job of a knife. चाकू से आप आसानी से उसको नहीं काट सकते हो. It is not simple job for a knife. विल डू इट हैज़ ग्रोन. ओके, विल डू इट अगर आप उसको काटोगे तो वो वापस से उग जानी है. स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ओके, स्लोली कंज्यूमिंग मीन्स यूजिंग फ्यूअल एनर्जी एट फ्रॉम देयर. तो आप उसको पोषण लेते हुए, मतलब अर्थ के अंदर से वो कंज्यूम करते हुए, अर्थ के अंदर से एनर्जी कंज्यूम करते हुए वो वापस से पोषण लेते हुए वापस से उग जाएगी धीरे से. राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग. ओके, राइज मीन्स मूव अप. वो जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे उसको पोषण मिलेगा. अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग. क्रस्ट मीन्स अपर लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, मतलब ऊपर का हिस्सा. तो वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है. एब्जॉर्ब मीन्स टू टेक समथिंग स्लोली, बराबर, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, सूख रहा है. years of the sunlight, air, water, and out of its leper hide. Okay, leper means affected with the leprosy.
मतलब बहुत ही ख़राब जो कृत्य है, जो सनलाइट जो है, पानी जो है और एयर जो है वो उसकी बेसिक नीड है। अगर उसको नहीं मिल पाती है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ओके, एंड वो क्या हो जाता है, हाइड मीन्स आउट ऑफ व्यू, मतलब धीरे धीरे वो पृथ्वी के ऊपर से नष्ट हो जाता है। सपोर्टिंग लीव्स, ओके, सपोर्टिंग लीव्स, सपोर्ट मीन्स टू प्रोड्यूस लीव्स, ओके, उसको नए पत्ते आने में बहुत टाइम लगता है। तो पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ट्री इनटू द फर्स्ट स्टैंजा एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इनटू द सेकंड स्टैंजा। सो हैक एंड द चॉप, हैक मीन्स कट करना, ठीक है, एंड चॉप मतलब भी होता है कट करना, लेकिन हैक का मतलब वार करना होता है। ओके, और चॉप का मतलब क्या होता है, उसके छोटे 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 पीसेस करना, दैट इज कॉल्ड चॉप। चॉप मीन्स कट इनटू द पीस एंड हैक मीन्स उसके ऊपर मतलब जोर से फटका लगाना, जैसे हम लोग ट्री को काटते हैं। बट दिस इज अलोन वॉन्ट नॉट सो मच पेन विल डू इट, बराबर, उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा उसको। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ओके, द ब्लीड मीन्स टू लॉस द ब्लड, खून बहता है हम उसका, दैट इज कॉल्ड बार्क। बार्क मीन्स होता है यहाँ पे हार्ड आउटर कन्विंग ऑफ द ट्री, मतलब उसका जो ऊपर का जो क्या बोलते हैं उसको, छाल बोलते हैं, बराबर, ऊपर का जो उसका लेयर होता है वो उसको हम निकालते हैं तो उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है, तो पोएट को ऐसी फील होती है कि उसके अंदर से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ओके, और हम उसको क्या करते हैं, क्लोज मतलब नियर, बहुत पास से, ग्राउंड के पास से हम उसको काट देते हैं। विल राइज द क्रूअल ग्रीन विक्स, ओके, तो वो है जो इतना हरा भरा है उसको हम उसके ग्रीन ट्विंग्स मतलब उसके जो हर एक डाली को हम काट देते हैं। मिनीचियर बॉक्स, ओके, मिनीचियर बॉक्स मतलब कि हम पूरी तरीके से उसको तबाह कर देते हैं। विच इज़ अनएक्सचेड विल बी एक्सपेन अगेन द फॉर्मर साइज, और वो अपने फिर से वो ज़मीन के अंदर से उसके रूट की वजह से वो बाहर निकलती है और अपने पुराने साइज़ के अंदर वापस से आ जाती है। नो, द रूट इज़ नॉट टू बी पुल्ड आउट, हियर पोएट सेज दैट नो, नहीं, जो रूट जो है वो पुल का मतलब होता है रिमूव, पुल का मतलब क्या होता है, रिमूव, तो पुल्ड आउट मतलब कि उसको रिमूव नहीं किया होता है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, बराबर, एंकर मीन्स रोके रखना, अर्थ का अंदर का जो पोर्शन है वो उसको रोके रखता है, उसको पकड़ के रखता है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट, और वो रोप्ड मतलब किसी से जोर से रस्सी से बांध देना, दैट इज़ कॉल्ड रोप्ड, और टाइटली उसको बांध दिया, जैसे ज़मीन होती है वो उस जबरदस्ती खींचा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। और पुल्ड आउट एंटायरली, और उसको कम्प्लीटली, एंटायरली मतलब कम्प्लीटली उसको बाहर पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल दिया जाए। एंड आउट ऑफ द अर्थ के, और वो ज़मीन की गुफा से बाहर आ जाते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और वहाँ पे जो उसकी स्ट्रेंथ मतलब एफर्ट, जो मजबूती होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाती है। एक्सपोज्ड मतलब टू डिस्क्लोज, ख़त्म हो जाती है, सामने आ जाती है। द सोर्स वाइट एंड वीट, बराबर, तो शॉर्ट्स जो होते हैं वो वाइट और वेट होते हैं, मतलब कि सफ़ेद और गीले होते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मतलब यू कैन से द डेलिकेट, संवेदनशीलता जो होती है वो छुपी होती है पेड़ों के अंदर, वो हमको बता नहीं सकते। फॉर ईयर इनसाइड द ईयर, क्योंकि अर्थ और पेड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कई सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ द थिंग इफ़ यू आर डूइंग विद दैम, सो दिस इज़ नॉट अ बेयरेबल फॉर द ट्री। देन द मैटर ऑफ scorching and caulking, the sun and the air, browning and the hardening, okay, matter means situation, okay, then the situation is about the scorching means to burn slightly, बराबर, एकदम उसको कह सकते हैं कि झुलसाने वाली जो सिचुएशन होती है वो हो जाती है। और चॉकिंग का मीन्स होता है कि ब्लॉक ब्रेथ, ओके, दम घुट जाता है उसका। तो इस तरीके से जब ज़मीन के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता है तो एकदम
बाहर निकल जाता है, उसका दम घुट जाता है, उसको पानी मिले, एयर मिले, सन मिले, लेकिन ज़मीन की सपोर्ट न होने की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो उसको आप एकदम से जैसे ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था तो एकदम हरा भरा था, लेकिन ज़मीन के साथ से आपने काट दिया तो एकदम सख्त हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। ट्विस्टिंग विथरिंग एंड देन इट इज़ डन। और ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब टू टर्न, ठीक है, वो एकदम से बदल जाता है। और उसके बाद उसका विथरिंग, विथर का मतलब होता है टू बिकमिंग वीक, वो एकदम मुरझा जाता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है। एंड देन इट इज़ डन, तो आपने उस ट्री को मार दिया होता है। तो दिस इज़ द इमोशन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, ओके, in this lesson. Well, the poet here considered the tree is a living organism, and according to the poet it has the right to live like any other creature, but the man is killing it with utmost cruelty and cleanliness. The poem indirectly gives us a strong idea about the trees are our lifeline, so they mustn't be killed. Okay, the point instruct us how a tree killed, but actually it means इट ऑपोजिट, मतलब वो बताते हैं कि भाई इस तरीके से ट्री काटी जाती है, लेकिन वो उसका विरोध कर रहे हैं एक्चुअली में। इट इम्प्लीट्स अ पर्सन शैल बी अ मर्डरर, ओके, इफ़ इट किल्स इट। ओके, हियर वो यहाँ पे काटना वर्ड यूज़ नहीं करते, कट यूज़ नहीं कर रहे, वो क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। Okay, understood. He says that a knife will be not to a harm to a tree. Okay, at last the poet convey that if tree is killed, it must be uprooted and completely on a sitting out this the on stating this the poet. Okay, poet एकदम disappointed हो जाते हैं। This is the poem, beautifully poem described by the poet Mr. G.V. Patel. So I hope you guys can understand about whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF that you have to write down in your notebook. Tomorrow there will be a test about this poem. Question answer I will send you. You have to write down in your HW notebook. Okay. In our next video we will discuss about new chapter, new topic. Okay. Bye. Take care.